Hello, students, and welcome to this session of Bullet Points in Forensic Medicine. Bullet Points in Forensic Medicine is a new concept launched by me. It's going to be beneficial for all those students who are either appearing for INI-CET examinations or NEET PG examinations or FMGE examinations. The intention of this series is to bring in front of you crisp bullet points of the forensic medicine topics which are regularly asked in these examinations. दोस्तों, मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन ये है कि ये सीरीज़ जो भी अपना स्टूडेंट देखे वो इन एग्जामिनेशंस में फोरेंसिक मेडिसिन में 100% स्कोर करे, right? And we understand that forensic medicine is not a big subject in the examination, but it is neither a small one. In forensic medicine we tend to have 13 questions in NEET PG, 12 to 13 questions in FMGE also, and approximately 8 to 9 questions in INI-CET examination. और ये तकरीबन ये जो क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दे फॉर्म अ गुड चंक जो आपकी रैंक को ऊपर या नीचे कहीं पर भी कर सकते हैं, राइट? फोरेंसिक मेडिसिन एग्जामिनेशंस में बहुत ही कॉमन एरिया से पूछी जाती है, बहुत ही कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं. अगर हम इन चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लें, इनके क्रिस्प पॉइंट्स याद रखें, आई एम श्योर everyone can score 100%. Okay, so let's begin bullet points in forensic medicine 1 by taking these two simple questions. ये questions जो हैं, these are going to give us the idea that what kind of topic are we dealing with today. So the first question is, Mr. X states during evidencing that he saw Mr. Y with gun around his building soon after Z was killed. Okay, so Mr. X saw Mr. Y with gun soon after some incident happened, and the incident seems to be that somebody called as Z has been killed. What kind of evidencing is this? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is the kind of evidencing that Mr. X is given here? Okay. Second question क्या है? Lawyer of defendant asks the witness of prosecution, did you positively see defendant holding stone? So lawyer of defendant is asking a question to the witness of prosecution, right? What stage of witnessing it would be? तो दो सिमिलर काइंड ऑफ राइमिंग या लुकिंग या साउंडिंग क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, और या इसी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मुलेशंस के क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं. पहले क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है किस तरीके की एविडेंसिंग है, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें ये पूछा हुआ है कि एविडेंसिंग कौन से स्टेज पे है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसिंग फर्स्ट, right? So traditionally we talk about three kind of evidences. The first one is oral evidence. What is oral evidence? When witness speaks in the कोर्टरूम, यानी कि विटनेस जो है वो कोर्टरूम में प्रेजेंट है और वो अपने मुंह से बोल रहा है, वो हो गई ओरल एविडेंसिंग, राइट? विटनेस की फिजिकल प्रेजेंस है कोर्टरूम में. अब ये जो ओरल एविडेंस है, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ओरल एविडेंस. सो व्हाट इज अ डायरेक्ट ओरल एविडेंस? विटनेस टेल्स what he saw happening. विटनेस ने जो कुछ भी हुआ है वो अपनी नज़र से देखा है, एंड ही टेल्स what he saw that happened in the court of law. इनडायरेक्ट क्या है? विटनेस saw something preceding to
the incident or post इंसिडेंट, यानी कि विटनेस ने इंसिडेंट तो नहीं देखा, बट ही सॉ समथिंग विच इज प्रिसीडिंग टू द इंसिडेंट और पोस्ट इंसिडेंट विच कैन रिलेट टू द इंसिडेंट. ओके, एंड तीसरा क्या है, हियर से विटनेस हर्ड समथिंग about the incident. Witness did not see anything, witness did not see preceding or post the incident anything, witness heard something related to the incident. So पहला क्या है, witness ने अपनी आँखों से वारदात होते हुए देखी, as simple as that, direct. सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट. विटनेस ने अपनी आंखों से वारदात होते हुए नहीं देखा, पर उसने वारदात होने से पहले या वारदात होने के बाद में कोई ऐसी चीज़ देखी विच कैन रिलेट टू द इंसिडेंट और द क्राइम इटसेल्फ. ओके, इट बिकम्स इनडायरेक्ट. तीसरा हियर से, विटनेस हर्ड समथिंग, उसने वारदात नहीं होते हुए देखी, उसने वारदात से पहले या बाद में कोई इंसिडेंट भी नहीं देखा, उसने कुछ सुना वारदात के बारे में. So he has heard something from people and that is what he is reproducing in the court of law. This is called as hearsay. All three are kind of oral evidence because witness is present in the courtroom and he is speaking, but the quality is different. Right? What is documentary evidence? Documentary evidence, if you will see, is a kind of evidence where only document is present as evidence in court, not any person. Right? If you have only document which can be read in a court by anyone, right, but there is no person to speak. For example, prescription of a doctor, but doctor is not available. The prescription can be read. It could be cutting of a newspaper. It could be some printed material from a book. Okay, all these kind of things are called as documentary evidence. Some kind of document being generated by any official. Okay, for example, if any crime involves any firearm and the firearm testing has been done by a ballistics expert and he prepares a report, right, and that report is submitted in the court of law, but ballistic expert is not available or being called, only his report is being read whether that firearm according to him could be the firearm of crime or not. That is a documentary evidence, right? So anything which is a document, there is no person to speak about it, becomes documentary evidence, right? And the third quality of evidence is, it is not hearsay. Sorry, I have written it as hearsay. It's not hearsay, this is circumstantial. Okay, it's not hearsay, it is circumstantial. So what is circumstantial? Circumstantial is the quality of evidence which where only circumstances are suggestive. Okay, for example, there is a person who is entering into a building, let's say at 4:45 p.m. and a crime happens in that building at 5 p.m. His entrance into the building at 4:45 p.m. is captured by a camera. Now his entrance into the building 15 minutes prior to the happening of the crime is a circumstantial evidence against him, not necessarily proving that he committed that crime, right? These are called as circumstantial evidence. So for our information sake, what can we remember is that any personal identity
found at crime site can be circumstantial evidence, right? For example, I go to a room where to meet someone on a particular day. I touch certain articles or desks which are present in that room. Next day a crime happens in that room. My fingerprints will also be found at the crime site. Now they are only circumstantial evidences against me because I was there a day earlier. So these kind of things are called as circumstantial evidence, where there is nothing concrete but circumstantial. The circumstances points towards happening of the incident probably by a person, right? So ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि एविडेंसेस कितनी कैटेगरी के होते हैं, याद रखिएगा। ओरल जिसके सब टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियर से, डॉक्यूमेंट्री एंड सर्कमस्टांशियल, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स की मैंने बात करी थी मगर थोड़ा सा लंबा हो गया डिस्कशन, बट ये चीज़ें याद रखने के लिए, समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ओरल में हमें क्या याद रखना है? स्पीकिंग पर्सन इन द कोर्ट। डायरेक्ट उसने देखा है, इनडायरेक्ट उसने वारदात नहीं देखी है बट वारदात के अराउंड कुछ देखा है, हियर से उसने कुछ सुना है, वही कोर्ट में बोल रहा है। ये याद रखना है हमें बुलेट पॉइंट्स की तरह। डॉक्यूमेंट्री वेयर ओनली अ डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंट, सर्कमस्टांशियल वेयर ओनली सर्कमस्टांसेस सजेस्ट दैट समथिंग वाज हैपनिंग। Okay, so if we move back to our question number 1, Mr. X states during evidencing that he saw Mr. Y with gun around his building soon after Z was killed. What kind of evidencing is this? इसका आंसर आप खुद ही डिस्कशन में देना मुझे, जब आप ये वीडियो देखोगे YouTube पे, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर your answers in the discussion after understanding what are different kind of evidences, right? You can say justify also कि क्यों वो आंसर होना चाहिए। अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है स्टेजेस ऑफ एविडेंसिंग, राइट? हमने एक क्वेश्चन स्टेजेस ऑफ एविडेंसिंग भी किया था। याद रखिएगा, जब भी कोई विटनेस कोर्ट रूम में जाता है, दीज आर द 3 थिंग्स दैट कुड हैपन विद हिम। दीज फर्स्ट इज डायरेक्ट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन के बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसके बाद में होगा रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन इफ नीडेड। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। मान लीजिए विटनेस जो है ये है प्रोसिक्यूशन का विटनेस। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना विटनेस बुलाया है टू प्रूव वॉट एवर प्रोसिक्यूशन इज एलिजिंग इन अ क्राइम। प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया, सबसे पहले क्या होगा? एग्जामिनेशन इन चीफ, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन। ये कौन कंडक्ट करता है? इट इज कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन लॉयर। अपना ही लॉयर सबसे पहले अपने ही विटनेस से बात करेगा और उससे क्या पूछेगा? उससे बोलेगा कि आप केस के बारे में क्या जानते हो, बताओ। दैट इज कॉल्ड एज एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? इट विल बी कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द ऑपोजिशन। तो यहाँ पर ऑपोजिशन का लॉयर कौन है? डिफेंस लॉयर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विटनेस है वो है प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। अब क्या होगा? डिफेंस लॉयर क्या प्रूव करने की कोशिश करेगा? वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि विटनेस ने जो भी प्रोसिक्यूशन ने बोला है दैट इज़ इनकरेक्ट, या उसमें कुछ लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को वो हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। कैसे करता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में इस लॉयर के पास पावर होती है to ask leading questions. Leading questions क्या होते हैं? Leading questions are those questions for which the witness can have to answer yes or no. Leading questions में witness को yes या no में जवाब देना ही पड़ेगा। ये जो पावर है लॉयर की टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन, ये
ऑपोजिशन लॉयर के पास होती है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द आंसर इज नो, नो लीडिंग क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद में अगर डिफेंस लॉयर प्रोसिक्यूशन विटनेस के एग्जामिनेशन इन चीफ में दिए हुए एविडेंस में कुछ लूप होल्स ढूंढता है, उसकी कोई रेक्टिफिकेशन करनी हो, राइट, उस लूप होल्स में कुछ क्लैरिटी लानी हो, तो रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा। तो रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा? रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन इज अगेन कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूशन लॉयर। रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है। द आइडिया ऑफ रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन इज़ कि क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से अगर विटनेस की एविडेंसिंग में कुछ लूप होल्स आए हैं तो उनको एड्रेस किया जा सके। और विटनेस की एविडेंसिंग में लूप होल्स क्यों हाईलाइट होंगे? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर थी उस क्रॉस एग्जामिनिंग लॉयर के पास में। वो क्या थी? टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, राइट। This is one of the most important things asked in examination again and again and again and again and again। बहुत बारी पूछा जा चुका है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, कौन पूछता है, किस स्टेज पे पूछा जा सकता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाएं, जो क्वेश्चन हमने हाईलाइट किया था, लॉयर ऑफ डिफेंडेंट, राइट, यानी डिफेंस लॉयर ask the witness of prosecution, did you positively see defendant holding stone, right? तो आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, the question is a leading question, right? The question is a leading question because he is asking, did you see or did you see not the defendant holding stone? So witness is bound to answer yes or no. So what do you think, what would be the stage of witnessing in this question? Again, इसका आंसर आप दोगे लिख करके डिस्कशन में with explanation, right? So the bullet points I wanted you to understand regarding evidences and stages of evidencing is किस तरीके से कंडक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किस में क्या इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? दैट लॉयर कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। Great. I'll see you in next session of bullet points in forensic medicine 2। वहाँ पर हम ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर के बहुत ही क्रिस्प डिस्कशन करेंगे। ये वाला थोड़ा सा लंबा है बिकॉज आई वांटेड एवरीबडी टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अगले वाले को थोड़ा सा और क्रिस्प करेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे, बट अगेन याद रखने के बुलेट पॉइंट्स की तरह बनाऊंगा ताकि आपको कोई पिक्चर मेमोरी की तरह चीज़ें याद रहे एंड आप अपने एग्जामिनेशन में उसे यूज़ कर पाओ। Bye. See you and waiting for all of you to subscribe अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगले वाले बुलेट पॉइंट्स का वेट करो, फटाफट थोड़े ही समय में अपलोड करूँगा, राइट। बाय।